মুহূৰ্তৰ দেশৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ মোদী আৰু অমিত শাহৰ দুৰ্গত আজি হাল্লা বল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী মোদী আৰু শাহৰ দুৰ্গ কপালে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শাহৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে এই যি নিৰ্বাচনী ৰণ এই যুঁজ হৈছে দেশৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ এই যুঁজ হৈছে দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজ বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ সংবিধান আৰু দেশৰ গণতন্ত্ৰ একেবাৰে শেষ কৰি পেলাব বিচাৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছে হেয়া কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিয়ে এনেধৰণে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে যেহেতু দুটাকৈ পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন সমাপ্ত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায় দ্বিতীয় পৰ্যায় নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে হে দুয়োটা নিৰ্বাচন যেহেতু ভোট গ্ৰহণ হৈ গৈছে তাৰ পিছতে এতিয়া ভয়ত কঁপিবলৈ ধৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পৰাজয়ৰ উমান পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু পৰাজয়ৰ উমান পাই এতিয়া দেশৰ জনতাক প্ৰত্যেকটো কথাতে মিছা কথা ক'বলৈ ধৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনেধৰণে গৰজি উঠিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই বিগ পলিটিকেল নিউজ মোদী শাহৰ দুৰ্গ কপালে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হাল্লা বল ৰাহুল গান্ধীৰ ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিৰ বাবে মোদীৰ বাবে দেশত এতিয়া সংকটত আছে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এয়াই প্ৰথমটো নিৰ্বাচন য'ত এটা ৰাজনৈতিক দলে পোনপটীয়াকৈ দেশৰ সংবিধানক আক্ৰমণ কৰিছে এই যুঁজ হৈছে দেশৰ সংবিধান দেশৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৱল ইমানেই নহয় ৰাহুল গান্ধীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে পৰাজয়ৰ ভয়ত এতিয়া কঁপি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া পৰাজয়ৰ ভয়ত কঁপি আছে পৰাজয়ৰ ভয়ে খেদি ফুৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০-২৫ জন লোকৰ সৈতে লগ হৈ দেশৰ সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰক শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু আমি হেয়া হ'বলৈ নিদিওঁ স্পষ্ট কথা ৰাহুল গান্ধী আদানী আম্বানীক লগত লৈ জনতাক শোষণ কৰি আছে মোদী চৰকাৰে কেৱল মাত্ৰ পুঁজিপতিৰ কথা চিন্তা কৰে কৃষকৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা নকৰে এনেধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবিধান কেৱল এখন কিতাপ নহয় সংবিধান হৈছে দেশৰ দৰিদ্ৰ জনতাৰ অস্ত্ৰ এই মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালত দেশৰ সকলো ধন 30-40 জন লোকক দি দিলে আৰু কোটিপতি বনালে এনেধৰণে মোদী শাহৰ দুৰ্গখ্যাত গুজৰাটত হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে ৰাহুল গান্ধী কিন্তু সেই মোদী চৰকাৰে কৃষি ঋণ মাফ কৰিব নোৱাৰে মোদী চৰকাৰে দেশৰ কৃষকৰ কথা নাভাবে দৰিদ্ৰ জনতাৰ কথা নাভাবে কেনেধৰণে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে হেয়া অলপমানো চিন্তা নকৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ পুঁজিপতিৰ কথা চিন্তা কৰে নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ এতিয়া ইটোৰ পিছত আনটো মিছা কথা কৈ আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ হৈ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া পৰাজয়ৰ উমান পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যাৰ বাবে মিছা কথা কৈ ফুৰিছে প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীক মোদী আৰু শাহৰ দুৰ্গখ্যাত গুজৰাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী পলম নকৰোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণৰ কিয়দাংশ আমাৰ লগত আছে কি কৈছে गुजरातत कांग्रेसर युवराज राहुल गांधी मन देखी हजारोनी संख्या में आज समग्र पाटण लोकसभा मत विस्तार हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है सवाल यह है
कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 22-25 लोग हिंदुस्तान के पूरे धन को, पूरी सत्ता को, पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करें। आपने देखा पिछले 10 सालों में यहां क्या हुआ है, गुजरात में क्या हुआ और पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ। आज हालत यह है, मैं आपको बताता हूं, 2 उदाहरण आपको देता हूं। आज हालत यह है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 22 लोग ऐसे हैं जिनका अगर आप धन जोड़ दें तो 70 करोड़ हिंदुस्तानियों जितना धन है उनके पास। नाम आप जानते हो, गुजरात में ही ये शुरू हुआ था। अदानी, अंबानी, ये नाम है। 20-25 लोग हैं। किसानों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया, मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप ताली बजा रहे हो, मगर यहां पे 90% लोगों को यह नहीं पता होगा कि 16 लाख करोड़ कितना होता है। आम आदमी को मालूम ही नहीं। अगर आपने अदानी से कहा देखो भैया 16 लाख करोड़ कितना होता है, 2 मिनट में बता देगा। मगर इतना बड़ा नंबर है कि जो किसान होता है, मजदूर होता है, छोटा व्यापार करता है, उसको यह नंबर समझ ही नहीं आता। मैं आपको समझा देता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करो, मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो, तब 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। और 22 लोगों का, भाई और बहनों, 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 25 साल का किसान कर्जा, 22 लोगों को।
हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। यह सच्चाई है देश की। और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं, इनके लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। इनके ही बयान आते हैं। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ, बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। ये हमारे मीडिया के मित्र हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, यही है ना मुद्दे। किसानों की स्थिति, आप मुझे बताओ, मीडिया में आपने बेरोजगारी की बात कब सुनी? कभी टीवी पर आपने देखा? नहीं। महंगाई की बात आपने कभी टीवी पे देखी कि भैया बहुत महंगाई हो रही है? कभी देखी? भागीदारी की बात कभी देखी, सुनी है आपने? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। मैंने लिस्ट निकाली, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली, बड़े बड़े एंकर्स की लिस्ट निकाली। उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मूड ये बनाते हैं, ये क्या दिखाते हैं? सबसे पहले 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा, आप देख लो, या नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, या फिर इन अरबपतियों की शादियां दिखेंगी, या फिर बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे, मगर आपको किसान कभी नहीं दिख सकता। बेरोजगार युवा आपको टीवी पे, मीडिया पे कभी नहीं दिख सकता। मगर यह देश की सच्चाई है। छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। आज सच्चाई है कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, यह सच्चाई है। मगर यह मीडिया में आपको कभी नहीं दिख सकती। ठीक है, तो मीडिया में आपकी भागीदारी नहीं है तो कहां है? आपकी आबादी 90% है, 15% देश में दलित हैं, कम से कम 50% पिछड़ा वर्ग है, 8% आदिवासी हैं, 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए,
वही है अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, यही हैं। और मुझे दिखा दो इन कंपनियों में 200 नाम हैं, इनके मालिकों में मुझे एक पिछड़ा नाम दिखा दो, एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी दिखा दो, एक गरीब जनरल कास्ट का दिखा दो। नहीं मिल सकता, है ही नहीं। हिंदुस्तान का 90% पॉपुलेशन ना आपको मीडिया में मिलेगा, ना आपको कॉर्पोरेट इंडिया में मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के मालिक निकालो, उधर आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। ठीक है, छोड़ो, आप कहोगे नहीं, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग कहेंगे नहीं भैया, हमें मीडिया में अपना आदमी नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी नहीं चाहिए, सरकार में तो चाहिए होगा आपको। सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं, दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। बजट का हर रुपया वो बांटते हैं। गुजरात में कितना पैसा आएगा, बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी, दलितों को, पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। मैंने इनके नाम निकाले, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनको पीछे बैठा रखा है, कोने में छोटा सा डिपार्टमेंट दे रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलने वाला। पिछड़े 3 हैं, दलित 3 हैं, आदिवासी 1 है। और अगर आप हिंदुस्तान के बजट को देखें, अगर 100 रुपए खर्च होते बजट में, 6 रुपए 10 पैसे ओबीसी, दलित और आदिवासी अफसर तय करते हैं। आपकी भागीदारी 90%, सॉरी, आपकी आबादी 90%, आपकी भागीदारी 100 में से 6 रुपए 10 पैसे। तो मेरा सवाल है, हिंदुस्तान की जो 90% आबादी है, वो ना बिजनेस में है, ना मीडिया में है, ना प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, ना प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ना सरकार में है, तो कहां है? मैं बताता हूं आपको, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं और छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं। अब जीएसटी कौन देता है? ये आपने शर्ट पहनी हुई है नीली, कितने की खरीदी आपने? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं भैया, कितने की शर्ट खरीदी आपने? हाँ, आप कितने की? 1000 रुपए की आपने शर्ट खरीदी। अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, वो 1000 रुपए की खरीदता? जितनी जीएसटी आपने दी उतनी जीएसटी वो दे रहा है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान शर्ट के लिए, पैंट के लिए, टूथपेस्ट के लिए देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 24 घंटा काम करता है, वो जीएसटी देता है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर हिंदुस्तान के 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो किसान का क्यों नहीं हो रहा? अगर अदानी जी को देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ाया जा सकता है, जमीन दी जा सकती है,
जल जंगल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पावर, विंड पावर, सारा का सारा उनको दिया जा सकता है, तो किसान को, मजदूर को, बेरोजगार युवा को क्यों नहीं दिया जा सकता? उसमें ऐसा क्या है जो हमारे किसानों में नहीं है? उसमें क्या है जो हमारे मजदूरों में नहीं है? एक ही चीज है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती है। बस वही एक चीज है। और ऐसा है कि लॉटरी खुल गई है। जो भी दिल में आता है, एनडीटीवी अच्छा लगा, उठा के ले गए। ये देखो रिपोर्टर हंस रहा है, इनकी गलती नहीं है। मैंने इनको इसलिए बोला, मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर इनको बांध के रखा हुआ है। ये जो दिल में है बोल नहीं सकते, नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा, फिर मतलब सैलरी नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो सिर हिला रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं हाँ जी सही बोल रहा है। और जहां भी देखो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा? आपको एक मजदूर दिखा? राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो पूरा ड्रामा चल रहा है, उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है, और अदानी जी के पैसे बन रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस क्या है? आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो समझा दी, मगर अब क्या है? ये एक्चुअली किसी को मालूम नहीं है। काम करती हैं, खाना पकाती हैं, देश के भविष्य की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। उस 8-10 घंटे काम के लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता है और कभी नहीं मिला है। देखा, ये जो पुरुष हैं, इन्होंने ताली इतनी जोरों से नहीं बजाई, इसको जोर से बजाइए, ये सच्चाई है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है, ये हर घर जानता है। तो हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। अब ये महालक्ष्मी योजना क्या है मैं बता रहा हूं। हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों नाम होंगे उसमें। उस लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपए अंदर डाल देगी। हर महीने 1 तारीख को करोड़ों लोग जागेंगे, बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए महीने के खटाखट आएंगे। ये किसान के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे, बेरोजगार युवा होंगे। इन परिवारों में पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो दुगना काम करती है। यह बात नहीं होगी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। उनको टेम्पररी जॉब मिलती है, 6 महीने की, 1 साल की। वो अदानी कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है,
बैंक अकाउंट में पैसा आता है, जॉब करना सीखते हैं और फिर उसके बाद में परमानेंट उनको जॉब दी जाती है, बिजनेस में उनको जगह दी जाती है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अप्रेंटिसशिप का सपना, पहली साल की नौकरी का सपना नहीं देख सकता है। प्राइवेट सेक्टर में होगी, पब्लिक सेक्टर में होगी, सरकारी अस्पतालों में होगी, सरकारी ऑफिसेज में होगी, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होगी। और करोड़ों युवाओं को साल का 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपया और 1 साल की टॉप ऑफ लाइन ट्रेनिंग मिलेगी। पार्टी और इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा देने जा रही है। 2-3 चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान का युवा जब सेना में जाता है, देशभक्ति की भावना से जाता है, बॉर्डर पे खड़ा होता है, देश की रक्षा करता है और जान भी देने के लिए तैयार होता है। मुझे लगता है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि अग्निवीर योजना हमारे जवानों पर अपमान है। इसीलिए हमने निर्णय ले लिया है कि 2 तरीके के शहीद नहीं होंगे, एक ही शहीद होगा। सबको शहीद का दर्जा मिलेगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबकी रक्षा होगी। रनर होता है, उसको बैंक लोन नहीं मिल सकता, तो बैंक के दरवाजे हम इन लोगों के लिए खोल देंगे। और दूसरी बात, ये जो जीएसटी है, ये गलत जीएसटी है। 5 अलग अलग टैक्स, किसानों पर टैक्स, इतना ऊंचा टैक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी को हम बदलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे जीएसटी बनेगी, एक जीएसटी होगी, कम से कम टैक्स होगा, सिंपल जीएसटी होगी, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। नई जीएसटी हम लागू करके आपको दिलवा देंगे। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। आप भावनगर के जो महाराजा थे, उन्होंने जो देश के लिए दूर होता है, छोटा व्यापार करता है, उसको यह नंबर समझ ही नहीं आता। मैं आपको समझा देता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं।